evening friends. So today we are going to discuss about the topic topographical sheets, color, sign and symbols. So this is a chapter first of class 7. Okay. So in this chapter we will going to discuss about the meaning of topographical map, as well as we discuss about the different color used in topographical map, as well as different signs and symbols. Okay, so let us start this chapter. First is topographical sheet. What is the meaning of topographical map? Now, so topographical map. So before starting topographical map, let us discuss some types of map. So map, there are main three types of map, like political map, physical map, as well as thematic map. Okay, so political map shows man-made features like boundaries, district boundary, national boundaries, settlements. Okay, means houses, roads, buildings, capitals. So all these things introduced in political map. Physical map, all the natural phenomena like mountain, plateau, so these are discussed in physical map. And thematic map, it shows agriculture, okay, population density. So if the features of all these three map combined together in a single map, that map is known as topographical map. Okay, it means topographical map is equal to political map plus physical map plus thematic map. In other words, you can say that topographical map shows man-made feature, as well as natural feature. It shows man-made feature as well as natural features. Okay. So topographical map contain the features of political map as well as physical map as well as features of thematic map. All these features contained in a single map. That map is known as topographical map. It is also known as topo sheet. Okay, survey map. All these are name of topographical map. Okay. So topographical map, you see these lines with the help of red color. Some lines runs horizontally and some lines runs vertically and some lines runs horizontally on topo sheet like this, like मैथ कॉपी की तरह आपने देखा होगा कुछ लाइन ऐसे वर्टिकली रन करती है, कुछ लाइन हॉरिजॉन्टली रन करती है ना. So those lines runs vertically on topo sheet. Vertically means this one. Those lines runs vertically on topo sheet are known as easting. And those lines runs horizontally on topo sheet. Are known as north. ठीक है. So topo sheet क्या है? सबसे पहले हमने बात की topo sheet, topographical map. So topographical map is a map which shows man-made features as well as natural features. जिसमें आपके natural boundaries है ना, like mountains, plateau, rivers, as well as settlements, roads, buildings, नेचुरल स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ये सारी चीजें आपकी एक सिंगल मैप पे है, उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप. उस टोपोग्राफिकल मैप में कुछ लाइनें होती हैं जो कि रेड कलर से होती हैं. उन लाइनों में जो लाइन वर्टिकल रन करती है, दोज लाइंस रन्स वर्टिकल, है ना, दोज लाइंस रन्स वर्टिकल ऑन टोपो शीट
are known as easting, and those lines run horizontal on topo sheet are known as north, ठीक है। तो ये तो कुछ बात हुई आपकी टोपोग्राफिकल मैप से। होप आपको टोपोग्राफिकल मैप समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स, है ना, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बिल्कुल आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे बाद में अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। क्लियर। अब इसमें एक टर्म है कॉन्टूर लाइन का, कॉन्टूर लाइन, ठीक है। देयर इज अ टर्म कॉन्टूर लाइन। ये सब अभी बेसिक चीजें हैं जो कि क्लास 10 में काम आने वाली हैं। अभी केवल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो व्हाट इज कॉन्टूर लाइन? सो कॉन्टूर लाइन are the imaginary lines, contour lines are the imaginary lines that joins equal point of elevation, okay। वो लाइनें हैं जो किसी भी हाइट के इक्वल पॉइंट को जोड़ती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टूर लाइन, है ना। सो कॉन्टूर लाइन, सपोज दिस इज अ माउंटेन, है ना, माउंटेन है, तो इसको सर्वे करके पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इंटरवल पे हमने पॉइंट ले लिए हर जगह, है ना, लाइक दिस। And we join these lines after surveying in both sides, so it look like this, it look like this, ठीक है। जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लाइन दिखेगी, इस तरह की लाइन बनेगी। ये ऐसा क्यों होता है? वो कॉन्टूर लाइन का मतलब क्या होता है? तो जब भी हमको मैप पे अगर माउंटेन का एलिवेशन दिखाना है मैप पे, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम माउंटेन ऐसा दिखा दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टूर लाइन की हेल्प से इस माउंटेन का सर्वे होता है और उसके हेल्प से इसकी पर्टिकुलर हाइट को, शेप को दिखाया जाता है प्लेन शीट पे, टोपोग्राफिकल मैप पे। इसको बोलते हैं कॉन्टूर लाइन। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ऐसी लाइनें खींची नहीं जाती, एक सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो लाइन होती नहीं है लेकिन हम उसे इमेजिन करते हैं, वैसे कॉन्टूर लाइन भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, लाइंस दैट ज्वाइन equal height of a relief feature means mountain, plateau, कुछ भी हो सकता है, from sea level, जिसका मीन पॉइंट है, कहां से नापते हैं, तो कहां से नापते हैं भाई, सी लेवल से। तो कॉन्टूर लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस इक्वल हाइट ऑफ अ रिलीफ फीचर फ्रॉम सी लेवल, दैट इज कॉन्टूर लाइन। और कॉन्टूर लाइन का फायदा क्या है? कॉन्टूर लाइन की हेल्प से हम किसी भी माउंटेन, प्लेटो या कोई भी हाइट वाली चीज को आराम से प्लेन फिगर पे शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस about the use of colors on topographical map, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चल, नेक्स्ट इज यूज ऑफ डिफरेंट कलर, यूज ऑफ different color on topo sheet। टोपो शीट पे अलग अलग कलर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट कलर? व्हाई वी यूज डिफरेंट कलर? ठीक है, हम अलग अलग कलर क्यों यूज करते हैं भाई टोपोग्राफिकल मैप पे? आपने देखा होगा कहीं हरा है, कहीं पीला है, कहीं व्हाइट है ना, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है। व्हाई वी यूज डिफरेंट कलर? सो डिफरेंट कलर इसलिए यूज करते हैं कि मैप, एक तो मैप अट्रैक्टिव होगा, फर्स्ट पॉइंट, इट लुक्स अट्रैक्टिव। ओके, द सेकंड थिंग इज इट इज
इजी टू इंटरप्रेट, इजी टू इंटरप्रेट यानी हमें मैप समझने में आसानी होगी. सो वी असाइन डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट थिंग्स. ओके, वी असाइन different colors for different things. क्यों? सबसे पहला रीजन क्यों भाई, क्यों अलग है? इट इज पहले इट लुक्स अट्रैक्टिव. फर्स्ट रीजन इज इट लुक्स अट्रैक्टिव. मैप अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा अलग अलग कलर से. एंड सेकेंड इज इट इज easy to describe the map. तो मैप को डिस्क्राइब करने में भी आसानी रहेगी. So let us discuss about the different colors. So there are lots of colors used on map. So first color, that is black, blue, red, white, okay, yellow, green, okay, and brown. So these colors mainly used in topographical map. So what is the meaning? Black color shows what, blue color shows what, red color shows what, white color shows what. So black color shows boundaries. ठीक है. तो बाउंड्री में आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, सारे तरह की बाउंड्रीज किस कलर से शो होती हैं? ब्लैक कलर से. तो उसके अलग अलग सिंबल्स हैं, वो आगे हम बताएंगे कौन कौन से सिंबल्स हैं, लेकिन वो किस कलर में होता है? ब्लैक कलर में होता है. ठीक है. एब्रिविएशन यूज्ड, ठीक है, जो भी एब्रिविएशन हम यूज करते हैं, ठीक, किसी भी चीज को बताने के लिए, यानी एब्रिविएशन मींस लाइक पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखते हैं, है ना. So abbreviation used in topographical map by black color. तो सब किस कलर में होते हैं? ब्लैक कलर में. Now blue. So blue it shows water bodies. ये तो हम सभी जानते हैं ना. ब्लू कलर से क्या दिखाते हैं हम? पानी. बचपन से हम कुछ भी कलर ड्राइंग बनाते हैं तो ब्लू कलर किसके लिए रहता है भाई? पानी के लिए. तो इट शोज वाटर बॉडीज. तो ब्लू कलर से हम क्या शोज करते हैं? वाटर बॉडी शो करते हैं, लाइक रिवर, सीज, है ना, लाइक रिवर, ओशन, सीज, पॉन्ड्स, है ना, etc. रेड कलर, सो इट शोज metal and unmetal road, unmetal road, ठीक है. सेटलमेंट्स यानी घर, ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है. सो जितने भी रोड्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑल इज शोन बाय रेड कलर. सभी किससे दिखाए जाते हैं? रेड कलर से. तो उसके साथ साथ ईस्टिंग और नॉर्थिंग, जो भी आपने बताया, ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग, वो भी किस कलर से होता है भाई? रेड कलर से ही होता है. ठीक है. व्हाइट कलर इट इज यूज्ड फॉर बैरन लैंड. बैरन लैंड क्या होता है? तो बैरन लैंड वो खराब जमीन, जिस बंजर भूमि, है ना, जिसे कह सकते हो जिसमें कुछ उगता ना हो. तो उस जो लैंड होती है उसको किस कलर से दिखाते हैं हम? व्हाइट कलर से. सो इट इज यूज्ड फॉर बैरन लैंड. यानी वहां पे किसी तरह की कोई एग्रीकल्चर, कोई खेती वगैरह नहीं होती है. येलो, सो येलो इट इज यूज्ड फॉर कल्टीवेटेड लैंड. ठीक है. तो टोपोग्राफिकल मैप पे अगर येलो से एरिया कवर्ड है तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? कि उस एरिया में क्या होता है?
एग्रीकल्चर होता है, उस एरिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, उस एरिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। जिस अगर टोपोग्राफिकल मैप पे अभी आगे आएगा ऑक्यूपेशन का टॉपिक, तो जिससे हम पता करेंगे कि उस एरिया में टोपोग्राफिकल मैप से ये पता करेंगे, पता करने की कोशिश करते हैं कि उस एरिया में किस तरह का ऑक्यूपेशन होता है। तो किसके बेस पे पता करेंगे हम कि किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं। लाइक अगर येलो येलो है पूरा, तो हमें पता चल जाएगा भाई वहां पे क्या होता है, मेन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। ग्रीनरीज है, पूरा हरा है तो जंगल है ना, फॉरेस्ट एरिया है तो मेनली लकड़ी का काम होता है, वुड का काम होता होगा, क्लियर। तो उस तरह से ऑक्यूपेशन हम डिसाइड कर पाते हैं। वाटर है बहुत ज्यादा तो फिशिंग होता होगा, है ना। सो इस तरह से ऑक्यूपेशन भी डिसाइड होता है। सो नेक्स्ट इज ग्रीन, सो इट इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट एरिया, इट इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट एरिया और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल वेजिटेशन। यानी नेचुरल वेजिटेशन मीन्स वो पेड़ पौधे जो अपने आप उगे नेचुरली, जिसको किसी इंसान ने नहीं उगाया है, वो अपने आप बिना किसी एफर्ट के उगे हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट, ओके। एंड ब्राउन कलर, सो ब्राउन कलर से क्या होता है भाई, क्या दिखाते हैं, ब्राउन कलर से माउंटेन वगैरह दिखाते हैं ना। सो ब्राउन कलर इट इज यूज फॉर कॉन्टूर लाइन। अभी हमने बताया कि माउंटेन को कैसे दिखाएंगे हम, कॉन्टूर लाइन के हेल्प से दिखाएंगे। कॉन्टूर लाइन, सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो जितने भी माउंटेन वगैरह हैं वो किससे दिखाए जाते हैं, ब्राउन कलर से। ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बचपन में हम जब भी पहाड़ बनाते हैं तो ब्राउन से बनाते हैं, पानी बनाते हैं तो ब्लू से बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ग्रीन कलर यूज फॉर फॉरेस्ट एरिया एंड येलो कलर यूज फॉर कल्टिवेटेड लैंड। एग्रीकल्चर के हम कौन सा कलर यूज करते हैं, येलो कलर यूज करते हैं। होप आपको ये कलर का समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक, ओके। चलो नेक्स्ट इज डिफरेंट सिंबल्स यूज ऑन टोपोग्राफिकल मैप। तो अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बाकी के सिंबल्स आप बुक से देख के समझ लेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं टोपोग्राफिकल मैप। Okay, so symbols used on topo sheet, ठीक है। तो टोपो शीट क्यों लिख रहे हैं भाई, टोपोग्राफिकल मैप को टोपो शीट भी कह सकते हैं, ओके। तो टोपोग्राफिकल मैप का जो शॉर्ट नेम है दैट इज टोपो शीट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज किस कलर से है जी, ब्लैक कलर से है ना। तो बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज में सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर लें। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे दिखाई जाती है, सो एक डैश, डार्क डैश और एक डॉट, डार्क डैश, एक डॉट, डार्क डैश, एक डॉट, डार्क डैश, एक डॉट, डार्क डैश, एक डॉट। तो इस तरह का जो सिंबल है वो किसके लिए यूज होता है जी, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए, ठीक है। अगर स्टेट बाउंड्री की बात करें, स्टेट बाउंड्रीज है ना, लाइक यूपी, एमपी, है ना, इसके बीच में जो बाउंड्रीज बनती है पॉलिटिकल मैप पे या टोपोग्राफिकल मैप पे, तो सेम ऐसा ही रहता है। बस अंतर कितना रहता है, ये जो डार्क डैश है वो थोड़ा लाइट होता है ना, लाइट डैश वन डॉट, लाइट डैश वन डॉट, लाइट डैश वन डॉट, लाइट डैश वन डॉट, लाइट डैश, है ना। सो दिस इज फॉर स्टेट बाउंड्रीज। ये किसका सिंबल है, स्टेट बाउंड्री का, ठीक है। वैसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की बात कर लें, तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में केवल डैश होते हैं, कोई भी डॉट नहीं होता, लाइक दिस, हल्के हल्के डैश होते हैं, उसमें डॉट नहीं होता। सो ये सारे जो चीजें किससे दिखाई जाती हैं, ब्लैक कलर से, ओके, ठीक है। तो कुछ सिंबल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ आप लोग अच्छे से बना लेंगे कॉपी में, बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। जितना अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे, जितना अच्छे समझेंगे, उतना आपको याद रहे। नाउ नेक्स्ट इज, है ना, नेक्स्ट इज मेटल एंड अनमेटल रोड। तो रोड की बात कर लें, तो रोड को किससे दिखाया जाता है, रेड कलर से। रोड को किससे दिखाया जाता है, रेड कलर से। इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस,
दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे पैरेलल बन नहीं पा रही, लेकिन समझ लेना आप बिल्कुल क्या है, ये पैरेलल है ना। तो ऐसा मत कहना सर आपने तो पैरेलल बनाया नहीं बिल्कुल। ठीक है, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं भाई। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। सो टू पैरेलल लाइंस, तो इसको बोलते हैं मेटल रोड। कौन सा रोड है? मेटल रोड, रेड कलर से। दो पैरेलल ब्रोकन लाइन है, पैरेलल तो है लेकिन ब्रोकन है, दैट इज अनमेटल्ड रोड। ठीक, सो ये कुछ आपके ठीक है। फुटपाथ है तो सिंगल लाइन है, सिंगल डॉट, सिंगल डैश डैश डैश, दैट इज फुटपाथ, इसको बोलते हैं फुटपाथ। ठीक, तो ये है कुछ सिंबल्स। उसके साथ साथ आपके रिवर के सिंबल्स हैं ब्लू कलर से, हमारे पास ब्लू कलर है तो दिखा देते हैं। तो रिवर के सिंबल हैं आपके, है ना। तो लाइक दिस, with the help of blue color, this is symbol of river। नदी को हम कैसे दिखाते हैं? नीले कलर से दिखाते हैं। ओके, so this is all about in this chapter। so there is one topic left, that is settlements। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, सेटलमेंट्स, है ना। सेटलमेंट्स, ओके, सेटलमेंट्स। So what is the meaning of settlements? Settlements होता क्या है? So settlements is a group of houses. It is a group of houses. ठीक है, अगर सेटलमेंट्स की बात करें तो सेटलमेंट्स एक लाइन में क्या बता सकते हैं? सेटलमेंट इज अ ग्रुप ऑफ हाउसेस। हाउसेस का ग्रुप है, किसी सिटी एरिया में, विलेज एरिया में, कहीं भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हाउसेस है, उसको हम बोलेंगे सेटलमेंट। तो अभी क्लास 7 के हिसाब से इसका टाइप्स नहीं पढ़ना है आपको, नहीं तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। बस आपको दो कैटेगरी पढ़नी है सेटलमेंट्स में। एक है भाई आपका टेम्पररी सेटलमेंट्स, temporary settlements and permanent settlements। permanent settlements, ठीक है। तो टेम्पररी नाम से क्लियर है, तो दो सेटलमेंट्स विच बिल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सेटलमेंट्स बिल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जो कच्चे मकान होते हैं, झोपड़ियां होती है, स्लम्स एरिया होते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ मजदूर कुछ घर बना के रहते हैं, तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, उसको बोलते हैं टेम्पररी सेटलमेंट। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होते हैं भाई? परमानेंट सेटलमेंट्स वो घर, वो ग्रुप ऑफ हाउसेस, है ना, सेटलमेंट्स बिल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लाइक buildings, bridges, hospitals, है ना, railway stations, your house। So these are the permanent settlements। ठीक है, तो वो सेटलमेंट जो लंबे समय के लिए रहते हैं, पक्के रहते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, है ना, झोपड़ियां वगैरह रहती हैं, उसको हम बोलते हैं टेम्पररी सेटलमेंट्स। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आप क्लास 10th में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही पढ़ना है आपकी क्लास में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन। So this is the last topic of this chapter, occupation। तो मैंने पहले भी बताया था how we decide occupation। Occupation means work, है ना। So work, different people engage in different type of work। That work is considered as their occupation। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग काम में क्या रहते हैं? इन्वॉल्व रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग किसान होते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? एग्रीकल्चर। कुछ लोग होते हैं सर्विस करते हैं तो सर्विस हो गया, है ना।
कुछ लोग किसी ऑक्यूपेशन में, कुछ लोग मछली पालन करते हैं, उसको फिशिंग ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन है। सो हाउ वी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप की हेल्प से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑक्यूपेशन है। तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई ऑक्यूपेशन? तो अभी मैंने पहले ही बताया था कि अगर येलो कलर, येलो एरिया है बहुत ज्यादा, है ना, येलो कलर से कवर है एरिया, अगर टोपोग्राफिकल मैप पे येलो कलर बहुत ज्यादा है, तो हम क्या मान लेंगे भाई, उस एरिया में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। क्लियर? अगर ब्लू कलर है बहुत ज्यादा, मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पे बहुत ज्यादा, तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? फिशिंग होगा। ग्रीन कलर है, ठीक है, तो मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? तब मेन ऑक्यूपेशन होगा भाई क्या चीज? फर्नीचर। फर्नीचर मेकिंग और डिपेंड्स ऑन वुड। ठीक है, इसके अलावा व्हाइट कलर है यानी बैरन लैंड है, तो वहां पे क्या होगी? माइनिंग होगी। सो मेन ऑक्यूपेशन इज माइनिंग। ओके, सो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं टोपोग्राफिकल मैप की हेल्प से, अलग अलग कलर की हेल्प से, कि उस एरिया में कैसा ऑक्यूपेशन है। ये सारी चीजें अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़नी है। अभी टोपोग्राफिकल मैप का सर्वे नहीं करना है, ये आपको क्लास 10th में करना है, ये केवल इंट्रोडक्शन है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।